Hi Pallavi, are you able to see me, hear me? Am I audible? Pallavi, you are on mute. Are you able to see me? Yes, ma'am. Hi, very nice to see you. Good evening. Yes, you can switch on your camera also. Yes, ma'am. I'll do that shortly. Okay. Yeah, so we can start our discussion. So would you like to see my presentation, whatever I have? There will be few trigger questions out there so that we can start our conversation, right? Ma'am, would you want to wait until a few more people join before you start the presentation? No, it is already time, so I would not wait. So, yeah. Okay. So when I say Okay. it is 15 minutes before you should join, that should be the thing, no? Even if it is Right. done, then at least this should be on time. Right, ma'am. We, Okay. we will we will allow them to come in once they join, but we can start with our presentation, right? Sure, ma'am. Sure. So just once if you if you come to the video, then I'll better. Yeah, great to see you. Great to see you too, ma'am. Yeah. So uh, yeah, people have started coming in. Let me see who is this. How is cold at your place? You are at Delhi, right? Right now, I'm in Gurgaon. Yes. Not feeling much cold? Uh, so it is cold, but it's manageable. Yes. Okay. You are driving somewhere, right? Are you coming Yeah, home? but I have parked myself, and I will first finish this entire call, and then I'll drive back. Okay, okay. You have parked yourself. So Yeah, I've parked somewhere on the side. okay, so it will take say 1 hour. You will be still there for 1 hour. Why not? Before ma'am's indispensable resources, 1 hour is nothing. Okay, okay. Thank you for that. So whoever has joined, can you rename yourself so that we can see your name? This is like Greek name or Russian name kind. So anyways, so what I do, Pallavi, is if I share my screen, so you'll be seeing that leadership growth, right? So what do I Yes. mean by leadership growth is, I'll be very brief so that we can discuss more, right? So leadership growth is like, it is not about authority or position, right? It is about yourself, how you deal yourself. No, you should be in charge of you should be in control of your own life. What you think, your thought process. So that is where your mind is. And if you can drive your mind, then you can conquer everybody, everything, every situation, right? So that is what I have observed. As I was sharing my maybe yesterday, that people creep, complain a lot and waste their time a lot in negativity, because of which they cannot see. So who is this? Who has joined? Can you rename yourself? We cannot figure out your name also. Anyways, so how to do that is, there are 6 steps to do it, right? And the trigger questions are meaningfulness of existing career. So yesterday you were discussing with me that you resigned because you didn't find yourself, in tune with that kind of job. But do you maybe I assume that you didn't love whatever you were doing, right? But the other side of the story is, do you have a mindset to love whatever you do? So that is my trigger question. Then Okay. the second is showing your relevance. Hmm.
the one thing that nobody else can do, no matter how much they are educated, no matter how much they are skilled, experienced, everything, or whatever position they are, still nobody can do what you can do today itself, right? So think over that. The third thing is becoming your way. So what I do is, whatever your dream personality about yourself is, suppose you are at version 0, suppose, and you want to be the ideal person that you want to be, and we call that as version 10. So I would like you to transform you from 0 to 10 in a very short time. And how does that happen? That happens the moment you tweak your mindset. It is so quick. And it is the most difficult thing for people with if they try on their own. If I try on my own, it will be difficult for me. But because I have mentors also who can see and guide me, that is why it has become easier, right? The next is, if you are not doing all those three that just now I have told you, you're losing time. Are you losing time? Do you feel like you are losing time? That's the fourth trigger that I'll ask you. And then for mid-career professionals, they are in uh, lot of peculiar kind of questions they have. So how do you know that you are growing? You know that you are progressing, whether you are in a job or not. Hello, Bhai Saab, can you switch on? Like say, can you mute yourself? Because lot of huh? Please mute yourself. Otherwise, Chalo. So people like that also come in. No, what you can. So, so the indicators are like say results have to be known. Whatever results you think that you are giving, no, you are the person who is providing those results should be known to you and also to somebody else, whoever you. Ma'am, just stop for a second. So you spoke about your trigger questions, okay? Yeah. And now you're talking about indicators, right? So this is part of the trigger questions as well. How do you do? Okay, I feel, ma'am, your presentation is very, very nice. Okay, can you please let me market this a little for you? Let me share this on LinkedIn. Let me share this on groups and on WhatsApp. You're going to expand based. You're going to utilize all your energy right now, and you're going to present just to me. And I don't think that. I think you deserve a wider audience. Can you just give me a day's time to market this for you? No, we'll do that. Don't worry, na. So see. Let me stop sharing. It doesn't. कर रहे हो इतना अच्छा कर रहे हो तो फिर आप ऐसे कैसे No, that wider audience will come, but no, I don't bother how many people are there in the audience. Even if it is one person, that person needs to get that value. I am, ma'am. I'm enjoying, ma'am. I can stay for 2 hours right now. Like I said, together we will be doing so many more things. I know. So first of all, you need to understand what I have to say, right? So it doesn't matter, na. One person, 2%, 3%. I have never bothered about that numbers. But Even ma'am, okay. So let's look at this as your dry run, okay? Dry run for the big day, okay? yeah. No. This discussion call. You'll be surprised to know that I have done 250 such 250 plus such dry runs already, and so like say whoever comes, no, they will why I have given myself that training, and I don't bother whether there is a person or not, because no, it will go to the YouTube anyways. People are watching, no, whoever is interested, they will be watching. I don't bother anything. Don't bother about anything except yourself, right? Okay, ma'am. Let's go ahead with it then. Yeah.
So I'll just give you some triggers that know why, because why I am so very intrigued about why people are not taking these small actions. No, the indicators are the, like say the other day I was telling you, no, the other day a person, he is doing 100%. He might join anytime now. So he says he has been doing 100%, फिर भी उसको promotion नहीं मिला ये सर. So then I asked, uh, do you do what is expected of you? So that one he didn't know. And then over a period of 4 classes, I discovered that this one thing was very, very important for him also. He also knows. वो करता नहीं. Why, you know? Can you Why? can you give a guess कि क्यों नहीं करता? Probably he didn't. Probably he didn't. He wasn't explained properly what his deliverables actually are. What is expected out of him truly. अरे नहीं. You'll be surprised to know. We all think that that might be the reason why people don't do what they should be doing. You know, वो एक ही काम इतना टाइम लग जाएगा, but that is the important thing. वो he knows. इतना टाइम लग जाएगा कि दूसरे काम वो नहीं कर सकता. Then I asked him the second question. वो दूसरे काम जो important नहीं है वो तुमको करने की जरूरत ही क्या है? You know, people are like say this simple reasoning है ना. But you know, people want to show volume कि कितना काम कर रहे हैं, दिन में 8 घंटे कर रहे हैं भाई, पूरा जितना जो बोला वही करते रहे हैं. This is the mindset. You know, there is a serious problem in that mindset towards the result. तो आप वो नहीं कर रहे हैं जो you only know कि that is the most important thing out there. Still you are not doing. And the second thing is your growth trajectory has to be upward. It cannot be flat. That मतलब आप कल जो कर रहे हो आज कर रहे हो, which means your version 0 remains version 0 only. You are not growing. तो ये हो रहा है क्या? This you need to monitor. The third thing. Ma'am, he said that मेरे को एक काम में इतना टाइम लग जाता है कि मैं बाकी नहीं कर पाता. That's what he said. That is what he said. Yes. So what did you ask him? You asked him that the other things, are they even important? Like, what did you ask him? So I asked him why the other things are not important na for your profile. You only know. You only have told me that the other things are not important, but that is what people expect him to do. But people also expect him to deliver. तुम do करोगे कि deliver करोगे भाई? First to figure out that. No, people can't figure out that. I am so very surprised to know. ना ये अभी मेरी रियलाइजेशन हुई है कि उतना भी नहीं लोगों को समझ आता. देन आप कौन सा स्किल सिखा दोगे? आप जो भी स्किल सिखा दोगे इट विल बी वेस्टेज, राइट? देन द सेकंड थिंग, यू नो, इट हैज टू बी ए ग्रोइंग अपवर्ड ट्रैजेक्टरी होना चाहिए. एंड द थर्ड थिंग इज ट्रेन पीपल टू रिप्लेस यू. So this is a mindset issue. If you are looking at this my screen very seriously, लोग बोलेंगे कि हाँ हमको ही replace कर दिया तो हुआ. Like say how can we be relevant? No, it is the thing. जैसे जैसे आप upward growth करते हो ना, you become more and more strategic. You are not doing anything. आप execution में नहीं रहते हो, management में नहीं रहते हो. You are getting into the strategic field. Strategic field करने के लिए अगर आप मान लीजिए कि strategic बन गए and then still you haven't trained people enough to take over whatever work you have been doing, तो फिर आप ही करोगे ना. Then strategic कब होगी? So that is why I say कि You think have to you're train. clever, but you're being stupid. Sorry. You think you're being too clever by making yourself indispensable, but you're actually stupid because you're not sharing your work and you're not, making a collaborative environment. Instead, you're just competing, and this will never work in your favor, right? So that is the user. That is exactly what I mean, and that is exactly everybody understands. उनको तो subordinate चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए जिनके ऊपर वो boss बन जाए. But then how to become a boss? आप दूसरे लोगों को भी काम दोगे तभी तो boss बनोगे. Yeah, you should not run after power. You should run after, like, I don't know what the word should be.
Instead of power, you should run after what, ma'am? Competency, growth, and Yeah. then आप अपना evolution देखोगे तो ये बाकी सारा चीज हो जाएगा, Yes, right? ma'am. And then the second thing is like that is a repetition. Action point में वो जो 6 strategy मैंने बताए थे action में वही होता है. तो पहले is the problem analysis, then the presentation skill, optimum use of time budget, ये सभी को पता है. Creating second line leaders, overcoming ambiguity and subject matter expertise. ये last वाला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको एडमिन वाला रोल काफी मिलता है, बिकॉज दैट इज वेयर यू ग्रो अप ना, आपका पोजीशन चेंज हो जाता है. बट एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज मे बी योर पोजीशन विल, योर डेजिग्नेशन विल नॉट चेंज, बट यू विल बी नोन अक्रॉस योर सेक्टर. सभी को पता होगा कि इसी के पास जाने से इसके पास काफी इंसाइट है एंड ही विल बी एबल टू हेल्प. And there is always a friction between this or that. हम एडमिन बन के लाइक से एडमिन हेड बन जाए या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज हमारे पास हो ताकि एवरीबडी कैन टेक हेल्प, आवर हेल्प, एंड वी गेट वाइडली रिकॉग्नाइज. रिकॉग्निशन तो चाहिए, सिग्निफिकेंस चाहिए, स्टैंड आउट होना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू ए डिसीजन वेयर टू गो तो वो एडमिन को चूज करते हैं. सो देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, नो, if you don't have a clarity. Then the myth, हर किसी को भी आप बोलो कि कम्युनिकेशन आपका ठीक करना चाहिए. ये जो मेरे क्लाइंट अभी ज्वाइन होने वाले हैं कि उसको भी बोला गया कि योर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो सोचा कि मुझे क्या इंग्लिश सीखना चाहिए. So then I asked him कि what you will know, what you will say if you learn English more. मतलब इंग्लिश तो वैसे भी बोलता है वो, but if you have very good English, then what will you convey? वो पहले मुझे हिंदी में बोल दो. तो many people ना they don't know what to say. तो जब तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं to convey, what you will convey even if you know English? So it is more than English, obviously. So work on that matter. The second thing is creating a success matrix. किसी को नहीं पता है. Like they, when you say, उनको अगर आप पूछोगे what has been your experience, they will not talk in terms of success matrix. They will talk रामायण महाभारत. पूरी की पूरी स्टोरी सुना देंगे. They will not know कि कहाँ पे क्या. फिर again another experience रामायण महाभारत because they are not learning from that. आप मैट्रिक्स के हिसाब से बात करोगे what has been your this SWOT एनालिसिस कर लिए या फिर एनीथिंग जो भी काम किए ना. SWOT तो हर किसी में होता है एंड अगेन फेल्योर्स एक्सपीरियंसेस भी होता है, राइट. देन अभी लाइक से आई कैन टीच हाउ टू फिगर आउट. द फील्ड कैन बी वेरी डिफरेंट बट व्हाट यू आर एमिंग एट ना, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू वो तो सबको पता होना चाहिए. सो व्हेन दैट हैपेंस ना, आप उसी टर्म में हमेशा ही बात करो. You eat, drink, breathe, that top line only. Then if people ask you more detail, then you can go to Ramayana Mahabharata of whatever your experience has been, right. वहां पे लोग गलत करते हैं, पहले ही बता देते हैं, लोग बोर हो जाते हैं and nobody knows. And so ma'am, can you just summarize this last point that you made? You're saying that we should firstly, communication is more than just English. You should have substance. I should know what to say. And then after that, what was your point? The point is creating a success matrix, which means whatever you have done, obviously you have done according to that only. SWOT analysis, for example, उसमें आप अपना successes, opportunities ये सब था. Based on that you have whatever you have done based on that only. But when it comes to explaining to presenting yourself first, it becomes all Ramayana Mahabharata, like say khichdi of everything. It doesn't become very specific to whatever people are asking or are interested about. No, from the first day itself, कोई third person को अगर आप सुनाओ who is not related to your field, he will not be interested. No, उसको कुछ मतलब ही नहीं बनता है आप बोल क्या रहे हो, unless you say कि ये था threat, ये था मेरा goal, and on that line, right.
Yeah, and I think that a lot of times, when people build up stories and they talk too much in detail instead of just talking to the point, it's probably because, they have lack of like they don't get an opportunity to express and share much. So they should probably do some journaling, or maybe they have some other modes to express, so that when they're talking business, they're just talking business, right? I don't know. It's a question. So that is even not even a business. They are talking about the entire process. No process तो आप ही के पास रहना है. Process nobody is interested. ना आपकी लाइफ में क्या हुआ nobody is interested. आज के दिन में आप क्या हो everybody is interested. And that is what the top line is. What are you today? And if you are not growing, wherever you are, we should have that dignity of having a top line. वो टॉप लाइन हमको होना चाहिए ताकि while we are in the process of one milestone to another, उस बीच में कुछ नहीं होता to show. But if you have a top line in mind, that is what you will talk about. You will obviously not talk about your past, right? Whatever you have achieved, वो कभी भी बोल सकते हो, but what you are going towards, that is very very important, and that should show in your eyes, right? Yes. And then होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज के बारे में मैंने बताया बहुत सारे लोगों को. मैंने एक एग्जांपल दिया कि a king is respected in his own kingdom, but a poet is respected all through the world. So who you want to be? कवि के पास पावर नहीं होता, but he has the knowledge, right? So what you and ultimately what does matter? पावर होता है अपने ही क्लोज सर्कल में. इफ यू आर रिकॉग्नाइज्ड, would you like to do that? Would you like to identify yourself with that, or would you like to be a poet, right? Poet. So that is what a subject matter expertise is. That is where I ask you to create your own relevance. Yes. That is where you should stand out. इस ये अगर कर लिया ना, कोई नहीं आपको हिला सकता उस पोजीशन से. You will be supreme, right? And all the creeping and complaining that is happening because of your expectation of validation from other people who don't know. आपके बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में दूसरे को पता ही क्या है. Still we have a tendency to get validation, approval from those people who don't even know, right? And so all this cribbing and complaining, the moment you stop all those things and focus on your subject, nothing of that sort is going to distract you. Yes, ma'am. The next is being relevant, depth and diversity. So when you're starting out your career, your experience has to be very diverse. एक ही सब्जेक्ट में अगर आपने काम किया, then you will not know what is the perspective of other people. All those things together creates a success story in your mind. Might be you will be contributing to just 1% of that. No, obviously, because of your subject matter expertise, your this thing. Other people, finance, admin, HR, operation, technology, all these are other part of your success story. But if you are not part of their success story as well at some point of time, then you will miss out कि वो आपको support कर रहे हैं कि नहीं. So that depth in the initial stage of your career you should have. And if you will be surprised to know, and this was a story I was reading somewhere, और कई बार भी देखा कि एक बॉस आके बोलता है, अच्छा ओके, you already have known so much, but you should try to be doing this. तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि whether the boss wants him to grow or he wants to sideline him. तो ये डाउट अगर हो जाए ना, then why this doubt comes? Because you are not thinking in terms of depth, right, in your field, right? So your motive is becoming a manager, getting power, being a king in your own circle. Your motivation is not larger. Your motivation is not to be a subject matter expert and be recognized everywhere, right? Yes. Yeah. So this comes to having a very big vision right now. Right now, you write something very audacious, like say everybody should say ये कहाँ होगा,
But unless you have that kind of mindset, unless you aim for the stars, you are not going to reach to the moon. Moon तक जाने के बारे में कितने लोग सोचते हैं? Why they can't think of? Because they haven't thought of at all. कुछ सोचा ही नहीं है. So write a big vision that actually inspires you, and you know कि unless you work consistently towards that, you are not going to get there, right? And Ma'am, why do people get into this negative thinking trap wherein they start thinking that, you know, my boss wants to steal my credit, or my peer wants to, you know, be recognized for my hard work? Why do people start thinking in that direction? Why do they become insecure? insecurity is an inherent lacuna, you know, that comes from our own personality. We haven't invested in our own personality this thing, and we haven't thought in that line. हमेशा ही हमने सोचा क्या है, like say this is the usual thing, because that is on sin ना. अपने आप पे जो हम invest कर रहे हैं, like say the book that you read, कितने सारे लोगों को इंटरेस्ट है जानने के लिए कि पल्लवी कौन सी किताब पढ़ रही है? Not many. So since they are not expressing any interest in knowing what you are doing in your private life, so you will also stop sharing all those things unless somebody says. So how many times you have, मैं आजकल ये किताब पढ़ रही हूँ, how many people are interested in that? अभी देखा कि 4-5 लोग नहीं, they are not showing any interest, you will not tell after some time. So now, even if you are investing within, many people don't at all invest. Now even if you are investing, you are not going to share. Now what will you share? वो जो बात कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट अगर कर पाए तो ठीक है. Like say you will, if you know for sure कि ये फालतू बातों में मुझे पार्टिसिपेट करना ही नहीं, unless you take that decision ना consciously, you will participate. क्योंकि 5 लोग बैठे हैं जो आपके कलीग, और and then they are discussing about something very relevant in their circle. उसमें थोड़ा सा एक मसाला घुस गया कि पता है उसने ऐसा बोला, and this might be, अच्छा ओके ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है. Now अगर if you are not very careful, आप उसमें कुछ एक ऐड कर दोगे. Now that is the starting point. And then it happens so invariably कि 5 मिनट के बाद पता चला कि आप चाय पे चुगली कर रहे हो. What this chai sutta break is supposed to be? ये तब होता है ना जब आपको किसी के साथ बात करनी है to resolve something. Yes. तो इसका फायदा नहीं उठाते बहुत सारे लोग. एंड किसी ने एक स्टोरी में अभी पढ़ रही थी, एंड दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी ऑल्सो, कि एक बंदे ने कुछ खिटपिट हुआ बॉस के साथ. लाइक से इट इज ओबियस ना, आप जब काम कर रहे हो एवरीथिंग यू एग्री विद अनदर पर्सन नॉट पॉसिबल. आप कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. यू आर सेइंग समथिंग, अगर आप बॉस हुए तो, एंड द अदर पर्सन इज सेइंग समथिंग एल्स, बिकॉज सबका मिस्टेक, फेल्योर्स, एक्सपीरियंस, पास्ट, अपब्रिंगिंग, everything is very different. So people will come with that kind of perspective. Now if you are not tolerant enough, then you will not agree और खिटपिट हो ही जाएगा. Now खिटपिट हुआ तो what is the best way to resolve that? The best way to resolve is सीधे ही सवाल पूछो. What is it that कि आपको इतना अपसेट कर रहा है? Now when would you ask that question? एकदम से स्ट्रेट में नहीं पूछना. You have to take him out, चाय पे ले जाओ, वहां पे बैठो कि सर मैंने ये बोला. Now you didn't agree. What is your perspective? Are you trying to say something which I don't know? Right? And allow him to speak out. बॉस है, जूनियर है, पियर है, एनीबडी, चाय पे ले जाके वो करो. लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि आप भी एग्रीव्ड हो, लाइक से the boss has said something which has affected you as well as your colleague. Now both the colleague, aggrieved party, you have gone for a chai sutta, and then you have started talking कि आज ऐसा हुआ यार, ये ऐसे ही बोल दिया, हो गया ना. वहां पे कुछ रिजॉल्व तो हुआ नहीं, आप लोग नेगेटिव होके वापस आए.
and now एक बंदा था अलग अलग, now you are a party in the same group बना लिया उसके अगेंस्ट में, it all started ना. अब जब आपके पास ये नेगेटिविटी हो गया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बिहेव पॉजिटिवली, क्योंकि आप कुछ भी बोल दोगे, चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसे हो जाएगा, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएंगे कि इट विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी ओनली. इट्स ऑल स्टार्ट्स विद दैट, एंड द स्टोरी गोज लाइक दिस कि एक बंदे के साथ, एक बंदे का खिटपिट हुआ, एंड देन ही वो सीधा कन्फ्रंट ही नहीं किया, एंड देन ही रिजाइंड, एंड देन बहुत साल हो गए, 10 साल के बाद वो कहीं मिले, बॉस वाज वेरी हैप्पी, वो उस टाइम का बॉस, अरे यार बहुत दिनों बाद मिले, कैसा है, क्या है, एंड हाउ आर यू डूइंग, ये सब. ये फिर चाय पे ही गए वो दोनों, चल बैठ के चाय पीते हैं, चाय पे, एंड देन कुछ डिस्कशन हुआ, एंड दिस पर्सन सेज कि आप ही की वजह से मैंने नौकरी छोड़ी थी, पता. तो उसने बोला, वो ही वाज शॉक्ड, है ऐसे था, नहीं आपने ये बोला था, आपने तो सुना ही नहीं था. बोला कि यार तुमने तो मुझे बताया नहीं, मैं माफी ही मांग लेता उस टाइम, तो तू जॉब छोड़ के चला गया और कुछ बोला भी नहीं मुझे, मौका तो देना चाहिए था ना. सो ही वाज ए गुड बॉस, तो इतना एक्सप्रेसिव था, तो इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो के भी बहुत सारे लोग होते हैं कि बोल देते हैं कि यू शुड हैव गिवन मी ए चांस. तो अगर हम How do we save ourselves from that negativity? Like you said, no, it reflects in your body language. Even if you want to be neutral, but somehow if your thoughts are negative, it won't hide. You won't be able to hide it. So how do you keep yourself so positive that you always look at the bright light, the positive side of it? Firstly, and second question, like which I'm repeating, is that how is it that you kind of save yourself from that trap wherein you think that people are trying to steal your credit and be in the limelight, and you will not get due recognition for your work, because that either that happens truly either it's a true objective fact, or maybe it's just something which is your perception. So how do you understand if it's your perception or it's actually happening? And how do you navigate this? Because you don't want to always keep CCing your boss and everything. You don't have to tell him that, you don't feel like telling him or her that, I did this, because you're true and honest to your work, and that's all that matters to you, right? So or should we not just think about it, or should we also think about, a little bit showing ourselves, but in a healthy manner? So how do we navigate all this? Yeah. So the first thing is very simple. एकदम, if you can keep it simple, nothing like it. सिंपल बोलने से आप इतने अंदर जाओगे क्यों, घुसना क्यों है. First thing what I ask you to do is, first thing is your vision, right? And that vision is very impossible kind of thing, something you have written down. उसके साथ आपने एक मिशन स्टेटमेंट भी डाला है, that also looks like a very huge, ठीक है. Then you have written down a goal which you will achieve in say 1 month or 3 months or quarter or whatever, right? लिखा है आपने, right? You have written down. Then once you have done that, have you written it, reverse engineer करके आज के दिन पे ले आए क्या? How is your thought process? वो 90 days से आज के दिन में करना क्या है? Those 3-4 action points आपने लिखा है क्या? Right? लिख दिया आपने? Yeah, no, you should write it. I'll write it. Okay, then. So if you have written down, then you will see that there is no time left for all those negativity. सामने वाले का क्या है क्या नहीं है, that is his पंगा, none of your business. उसका वो क्या सोचता है, none of your business. You always act very very positive because you have a goal to achieve. यार वो दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, मेरा क्या आना जाना उसमें. Just focus on that, and I'll tell you, just like I have given you a example of reading a book. You are reading a book. आप अगर रोज एक बुक पढ़ रहे हो, एक बुक का 2 पेज या 3 पेज पढ़ रहे हो, then you are writing on that something you're learning. कुछ 2-3 points तो आए होंगे, right? Once you are done with it, you are giving yourself an entire routine, positive routine. वो 3 चीज जो आपके दिमाग में घुस गए, and you would like then to act on those.
जो भी 3 चीजें आपने पढ़ी, कोई भी किताब पढ़ो, देन आप एक्ट करोगे, देन यू विल फाइंड कि क्या होता है रिजल्ट। ये मैं बोल रही हूँ किताब पढ़ने की बात। साइमल्टेनियसली योर वर्क विल बी इफेक्टेड इन दैट पॉजिटिव मैनर ओनली। वंस यू आर डन, आपके वर्क में भी तो वही है ना, सेम चीज, गोल सेटिंग, राइट? यू इवन इफ नोबडी हैज guided you for that goal setting, you set a goal for yourself. Now what all is required, इसका हेल्प चाहिए, उसका सपोर्ट वहां पे चाहिए, उसका वहां पे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता तो अच्छा होता, ये थिंग ऑल्सो आपको आउटलाइन करना होगा। वंस यू डू दैट, सपोज यू हैव ए टीम ऑफ 5 पीपल, राइट, और एक बॉस है। नाउ यू हैव आउटलाइन कि बॉस से ये हेल्प, नंबर 1 कलीग से ये, नंबर 2 से ये, नंबर 3 से ये, और उसको अगर ये हेल्प मिलने के बाद मेरा ये लेवल आ जाएगा तो ये। इफ यू हैव आउटलाइन दिस, आप जाके डिस्कस करो। वो एक बार ही आप करके देखना, दे विल बिकम योर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। जिंदगी में वो आपके बारे में नेगेटिव बोल ही नहीं सकते। अच्छा, अगर मैं उनके साथ अपना गोल डिस्कस करूं? गोल डिस्कस कीजिए, जहाँ पे उनका सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आप उनको बोलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दोगे क्या, मुझे ये अचीव करना है। एंड देन once I achieve this, then this will help in your goal achievement also, because I'll have some time to help you out. यहाँ पे तो भी वाला गोल डिस्कस करना है उनसे, या वो जो लार्जर गोल बनाया था वो वाला डिस्कस करना है? लार्जर गोल अभी नहीं, टू स्टार्ट विथ whatever your immediate goal, वो सबको पता है, राइट? देन यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू एवरीबडी कि भाई आपका गोल क्या है, पर्सनल गोल। अभी तो आप ऑफिस में हो, ऑफिस में सब एक गोल, एक डेडलाइन सबके लिए है, एंड बेस्ड ऑन दैट डेडलाइन एवरीबडी हैज ए गोल, एवरी डिपार्टमेंट हैज ए गोल, योर ओन सेक्शन हैज ए गोल, एंड देन उस सेक्शन में जो 4 5 6 10 जितने भी है, सबको अपना अपना गोल मिला हुआ है। Now whatever goal, whatever target you have been given, उसको आप डिटेली डिस्कस करो कि दिस, if we can do this, right? आपकी बातों से मुझे ऐसे कुछ रियलाइजेशन स्ट्राइक हुआ। आई थिंक जैसे our past experiences contribute a lot in who we are today. So as children, sometimes we don't get that kind of recognition in school. We are not the ones who are answering all the questions, and we are in the back. We are not the best scorers, but that doesn't reflect on our talent or personality or capabilities. But that's not the case. Academics, everyone's not the best at in the beginning, right? Yeah. So happens is that, so your thinking gets molded like this, that okay, now I want to be recognized, now I want credit. So you start thinking, even if it's not the case, you start thinking that everybody's trying to the only way to get credit is to ensure that others don't get it. Like your thinking becomes negative. So you should kind of keep telling yourself, but if you were positive, if you were someone who got social recognition in your childhood, you got time from your parents, attention from your family and friends, then you will just, thought will only not occur to you. You will say, my job is to work hard, whatever I deserve I will definitely get one day. And right, ma'am? So the whatever you are saying ना, अभी take a pause और एक बार आप सोचो, जो भी आपने बोला ना, कीपिंग योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन, वो जो स्टेटस था बचपन से लेके अभी तक, एंड देन रीथिंक इट। क्या आप सोचते हुए दूसरे किसी का रिलेवेंस के बारे में सोचा? डिड यू थिंक द अदर पर्सन ऑल्सो इज एज रिलेवेंट एज यू? सोचा? No. आपने ये सोचा कि यू विल कोलैबोरेट विथ अनदर पर्सन? सोचा? नो। देन आपको जो नहीं मिला, ओनली बेस्ड ऑन दैट यू आर ट्राइंग टू इवेलुएट योर प्रेजेंट नाउ। और सबसे खराब ये है हम सभी का कि वी, इन ऑर्डर टू गेट रिकॉग्नाइज्ड ना, हमको दूसरे का वैलिडेशन चाहिए। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, सो व्हाई डू यू नीड दैट? बिकॉज आप खुद को वैलिडेट नहीं कर पा रहे। You are your only competition, है ना मैम? Yes. So आप नहीं कर पा रहे हो, क्यों? Why is that happening? It is happening because आपका वो भयंकर सा गोल है नहीं, विजन नहीं है।
अभी आपका वंकर सा, no, that statement, you write down that statement. The day you will write down and you will figure some mission statement कि उसको अचीव करने का ये तरीका है. Everything else will be like noise. Your focus will be on that vision only. हाँ, तो उसके बाद ना you will see कि ये जो पूरी दुनिया है ना, it looks like से अच्छा ठीक है, हो रहा है, part of it. So you मतलब कि आपकी जो दुनिया है ना, it is वो बड़ी सी चीज है. Ma'am, you said a very beautiful thought. You said that that person, because of his past experiences, has become like that. Instead of becoming like that, that person could have thought that whatever I went through, maybe somebody else could have also gone through. I should not let anybody feel the way I felt one day. So I should let them, I should give them appreciation. I should let them have recognition. At least they should feel good. Are you getting it? हाँ. So it is जब आप दूसरे के बारे में सोचोगे ना, अच्छा सोचो या बुरा सोचो, then you shift the focus from yourself to other people. Yes. The moment you do that, आप कभी ना कभी गड़बड़ कर लोगे. Wow, ma'am, this is so good. Good point. So your energy has to be within you. जो कि वो बड़े फोकस पे, जिस दिन आप वो बड़ा अचीव कर लोगे, आप अकेले थोड़े ही करोगे यार. ये Yes, ma'am. दुनिया पूरी की पूरी तरह से इम्पैक्ट हो जाएगी. तो महात्मा गांधी ने फ्रीडम फाइट जीता हमारे लिए, अपने घर में रखा थोड़े. तो इट विल इम्पैक्ट. तो उस टाइम में अगर वो झगड़ा कर लेते किसी से, मतलब वो झगड़ा तो था ही नहीं उनके पूरे स्ट्रेटेजी में, कर लेते तो कितनी छोटी सी बात होती, कितना बड़ा विजन था. सब खराब हो. नाउ व्हाट, वेयर आर यू? आप महात्मा गांधी का वो विजन के साथ कंपेरेबल कुछ विजन रखे हैं कि नहीं रखे? कीप दैट. बाकी सारी चीजें होते रहेंगी. आप अच्छा भी बोलोगे, बुरा भी बोलोगे किसी के बारे में, बट यू विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट. योर प्रोडक्टिविटी विल रिमेन द सेम. कोई भी कुछ बोले, आप कुछ बोलो, किसी भी तरह से रिएक्ट करो, आपको देखते ही लोग बोलेंगे यार इनका कुछ आता जाता है नहीं, ये कुछ भी बोलती रहती है, बिंदास काइंड है. आपको क्या चाहिए? उससे बड़ा कुछ चाहिए? तो यू काइंड ऑफ नो, आपका इमेज आपने बना दिया, आपकी ब्रांडिंग ही ऐसे होगी, बिंदास टाइप, राइट? वंस यू आर बिंदास, there is less chance that you will get into a quarrel or झगड़ा with anybody. So your mental peace restore हो गया. And that should not be artificial. It has to be from the core of your heart. Confrontations should only be avoided as much as you can unless something is really like dear to your principles. जैसे कोई किसी को मार रहा है, मतलब something, unless something really extreme is happening, why would you want to get into confrontations, right? Yes. And then आपने जैसे बताया कि कोई किसी को मार रहा है, तो it is just, आप देखोगे दुनिया चल नहीं सकती if there is less than 90% of अच्छाई. दुनिया में 10% बहुत बुरी बात होती है. हमारी मीडिया और जर्नलिज्म का काम ही है कि वो कुछ बना के सब लोगों को पेश करे ताकि वो चले. That's their business, right? It is their business. So उनको अपना बिजनेस, हमको तो समझ आए ना, हम तो समझ रहे हैं. So the law of the universe is 90% अच्छाई इस दुनिया में है, जो हम केयर ही नहीं करते, क्योंकि इतनी अच्छाई है, हम अपने आप पे इतने घुस गए हैं कि हमको वो अच्छाई दिख नहीं रही है. जो बुराई है उसी को हम लेके कंपाउंडिंग करके अपने दिमाग में रखे हुए. अगर ये हो गया तो क्या करेंगे? हुआ नहीं ना, जब हो जाएगा. क्या सेल्फ इंटरेस्ट से कम ड्रिवन है, तभी तो ये सोसाइटी फंक्शन कर रही है. अगर सभी सेल्फिश होते तो आज आप मुझे फ्री में इतना एजुकेटिंग सेमिनार नहीं दे रहे होते. आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया आपने उनको जो आपको बनाया. सो सी कि कितना चीज जो हो रहा है. सो इट इज लाइक हैपनिंग कि सब कोई अच्छा ही कर रहा है. एंड इवन इफ ना आपने कुछ किसी को दे दिया, सो इट इज लाइक नथिंग ना, कुछ भी नहीं है.
सो इन एक्सचेंज करके आप कैसे भी देते हो, किसी को देते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, फर्स्ट थिंग यू हैव टू गिव योरसेल्फ ना। आप खुद को जब दोगे, इट विल गो टू योर पेरेंट्स। लाइक से आप खुद को दे रहे हो, मतलब आप इतने कैपेबल हो कि यू आर एबल टू गिव योरसेल्फ। आप अगर देखोगे चारों तरफ, पीपल आर नॉट एबल टू गिव देमसेल्व्स यार, इसीलिए तो इतनी परेशान। they are not able to give themselves, that is why they are looking it outwards. अब शुरू प्रॉब्लम यही से होता है। एंड हाउ टू टैकल द बॉस, ये अचानक से नहीं हो जाता। यू हैव टू टैकल द एंटायर योरसेल्फ फर्स्ट, कि आप कैसे बनोगे ताकि वो बॉस आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाए। जहां पे आप बोल रहे हो कि क्रेडिट आपका ले जाता है कोई, ये रेगुलरली होता है ऑफिस सर्कमस्टेंस में। आपने कुछ किया, दूसरे ने ले लिया, तो आप क्या करो, पहले से ही उसको डिजाइन करो। किसी को आप उसका इंचार्ज बना दो। लाइक एज आई से, ट्रेन समबडी टू रिप्लेस यू। तो आप शुरू से ही उसको कर रहे हो ना, एज ए प्रिंसिपल, कि वो बंदे को आपने क्रेडिट देना ही है। शुरू से माइंडसेट ही बना दिया, तो आपसे क्रेडिट वो छीन के ले कहाँ जाएगा, आपने तो पहले से दिया हुआ। हाँ, राइट। सो व्हेन आपने दे दिया जो क्रेडिट, मान लीजिए कि सम दिस पर्सन, आपके साथ में जितने सारे लोग हैं, पॉइंट नंबर 1 दे दिया उसको, पॉइंट नंबर 2 दे दिया उसको, पॉइंट एक जगह मैं इसके पहले थी, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन तो दिखाया नहीं, मैं बांधवगढ़ करके एक थी, आप गूगल करना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो इट वाज ए जंगल में थी, बाघ लोगों को मार रहा था। वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मेरे कंपनी को बोला था कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स दो। तो आई वाज वर्किंग विद 500 इलिटरेट वुमेन, राइट, एंड दे वन 17 अवार्ड्स इंक्लूडिंग वन फ्रॉम नरेंद्र मोदी। उस टाइम में वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। एंड वो लोग पढ़े लिखे थे नहीं, बट दे स्टिल बिकेम मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड कलेक्टर के साथ। तो पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, राइट। सो उनको मैंने ना हर एक लेडी को एक एक चीज सिखाया था, तो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। हर एक गांव में जैसे 30, 40, 50 या 100 घर है, तो उतनी सारी लेडीज थी हर एक घर से। उनको मैंने एक एक चीज सिखाया था, किसी को रूट ट्रीटमेंट, किसी को सीड ट्रीटमेंट, किसी को नर्सरी, किसी को कुछ ऐसे करके सिखाया था। नाउ सबको मैंने क्रेडिट दे दिया, तो मेरा क्या रहा? सीड ट्रीटमेंट, मुझे सीड ट्रीटमेंट से लेके 500 स्किल्स आते थे, सबको एक एक स्किल आता था। सो आप जब सिखाओगे ना, एक बंदे को सीड ट्रीटमेंट का अच्छा आ जाएगा, वो पीएचडी कर जाएगा उसमें, उसको करने दो पीएचडी। किसने सिखाया उसको पीएचडी का रूट चीज? आपने सिखाया, राइट। तो आपके पास 500 चीज हैं, स्किल्स, आपने उसका परफेक्ट नहीं किया तो क्या, आपने 500 लोगों की जिंदगी बनाई। 17 अवार्ड्स उन्होंने जो लिया, वो उन्होंने लिया, आपके पास नहीं आया। लेकिन आप नहीं होते तो वो कहाँ थे? हाँ, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर्स जो होते हैं ना, उनमें ऐसा आई थिंक इसलिए आता है बिकॉज जो सुपरवाइजर्स या बॉसेस होते हैं वो लोग फिर ऐसे बोलेंगे कि आप जैसे अप्रेजल के टाइम या उसके टाइम पे कि जैसे टीम में एक बेल कर्व बनाते हैं, वो जो अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है कि इसने ज्यादा अच्छा करा है, आपने तो ऐसे किया है, और फिर आपको लगता है कि ये तो सारा मैंने इसको कराया था, मतलब मैंने उसको मेल भेजने दिया, तो मतलब क्योंकि टीम वर्क होता है, एक टीम वर्क को फिर वो क्या, बहुत सारे हमने इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स भी तो पढ़े हुए हैं कि टीम वर्क की वजह से क्या क्या होता है। बट अगर हम दिल के अच्छे इंसान हैं, जैसे कि आप और मैं, अगर हम हमारी सोच ही, हम एक डेवलपमेंट सेक्टर वाले लोग हैं, हमें तो लोगों को हेल्प करने के लिए हम जन्म हुए हैं, तो फिर हमें वो चीजें सुन के थोड़ा खराब लगता है और हमें लगता है कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, तो उस चीजों को लोग फिर उनको फिर डिससैटिस्फैक्शन आ जाती है एट वर्क। तो फिर उस चीज को मतलब उन लोगों के लिए आप कैसे सजेशन दोगे कि व्हाट शुड दे डू? मैं वही पहले से ही बोल रही हूँ, आप अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा करते हो कि नहीं करते हो, सबसे पहली बात। इफ यू हैव कैपेबिलिटी ना, आपको कोई, आपके साथ पॉलिटिक्स आज हो जाएगा, बट व्हाट यू नो, राइट। एंड इफ यू हैव कैपेबिलिटी, आप वहां पे नहीं रुकोगे, यू विल एड ऑन टू दैट।
आपकी Yes. जो आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो एक्सपर्टाइज है, आपकी जो सोच है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. सो यू विल ऑलवेज हैव दैट यूनिकनेस. पक्का. कोई आपको प्रमोशन दे चाहे नहीं दे, यहाँ नहीं दे तो कहीं और आ जाएगा आपके पास. डोंट यू वरी. बट यू हाँ, हैव टू. पैनिक आप नहीं करनी चाहिए. इस पॉलिटिक्स में खुद मत घुस जाओ. जिस पॉलिटिक्स में है वो अपने आप को मत गंदा करो. कब है ना मैम. हाँ, ये जो कॉर्पोरेट है ना, वो आपकी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है. हम खुद अर्थ वाले ही इतने बड़े यूनिवर्स का एक छोटे से हिस्से में है. वहां पे कितने छोटे हैं. वहां पे कॉर्पोरेट तो कोई बात ही नहीं है. एंड व्हेन योर माइंड इज एक्सपेंडिंग, नो, ये वाला चीज नहीं है. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग समथिंग वेरी एब्स्ट्रैक्ट, बट आप देखो, इसीलिए मैंने बोला कि दूसरे को ट्रेन करके खुद को आप ताकि आपको रिप्लेस कर दें. तो आपको रिप्लेस अगर कर दें तो दैट गोज इनटू, आप कैसे उसको लिखोगे. दैट वन वो चौंकाने के लिए मैंने लिखा है, समथिंग शॉकिंग, सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू इट. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन. बट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि आप इतने सारे लोगों को ट्रेन कर दो कि आपके पास टाइम ही मिल जाएगा. हम क्या बोलते रहते हैं, 8 घंटे मेरी नौकरी चल रही है. नाउ आउट ऑफ दैट 8 घंटे, 4 घंटे आप गप मार रहे हो, सोच रहे हो कि भाई मेरे साथ पता नहीं क्या तो हो गया. राइट. नेगेटिव. हाँ. इफ यू स्टॉप थिंकिंग दैट आपके आपके काम 4 घंटे में हो जाना है, तो वी आर वेस्टिंग से 4 घंटे एवरी डे. सो 4 घंटे आप सेव करो सबसे पहले. वो आपके लिए इंडिकेटर है. कीप दैट इंडिकेटर. आपका काम 4 घंटे में खत्म हुआ कि नहीं. अभी आप बताओ कि 4 घंटे में खत्म हो गया तो मेरा ऑफिस का क्या होगा, बाकी 4 घंटे में क्या करूं. आप कुछ भी कर सकते हो. आप कुछ पढ़ पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हो. Who can stop you? आप कुछ लिख सकते हो तो लिखो, जो भी एक्सपीरियंस आपका हुआ. 1 पेज समथिंग, लाइक से फ्लायर लिखो, सिनॉप्सिस लिखो, एनीथिंग यू कैन राइट. And if you write for say 30 days, you will have 30 pages of extraordinary wisdom. आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी, you have 30 pages of wisdom. And at the end of the year, you have a book of wisdom. Now you can name it anything. Might be something is just आपने कहीं से कॉपी करके पेस्ट किया है, but still you have given a thought ना उसके ऊपर. जब भी आपने कॉपी करके पेस्ट किया, कुछ तो थॉट गया होगा. क्यों उसी को कॉपी पेस्ट किया ना. वो जो थॉट है, दैट थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर दिस वर्ल्ड. आप यकीन मानो, दैट थॉट इज नॉट लेस देन 100 crores. एक एक थॉट, जिस थॉट को लेके आपने वो कॉपी पेस्ट भी किया है, यू हैवंट रिटन एनीथिंग, आप कहीं से उठा के उसको कॉपी पेस्ट किए, राइट. करो, बट दैट थॉट वाज योर्स. क्यों आपने ऐसे किया. आप उस पैराग्राफ जो कॉपी पेस्ट करके आपने उठाया है, उसके ऊपर लिखो व्हाई यू कॉपीड इट, व्हाट वाज योर थॉट. सो दैट विल बी जस्ट 1 लाइन. तो पूरे दिन में आप 3 पैराग्राफ अगर उठाओगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट योर 1 पेज, राइट. और उसमें 3 ही लाइन आपके होंगे, बट दैट इज लाइक से इनवैल्यूएबल. कब आपको पता चलेगा. आप तो वो शेयर नहीं करोगे किसी और के साथ. कब आपको पता चलेगा. 1 साल बाद आप उसको देख लेना. अभी तो इजी है ना. अभी तो आप कट पेस्ट करके एक फाइल बना के रख सकते हो, राइट. सो राइट नाउ इट विल बी इजियर फॉर यू टू कीप डिजिटली. और 1 साल के बाद आप उसको कंपेयर कर सकते हो. नाउ यू विल बी ना सरप्राइज. अच्छा, मैंने ये सोचा था 1 साल पहले. नाउ इफ यू आर इन दैट, आपको अगर उसका चस्का लग गया, you can never get negative. Now if somebody is getting negative, आपको लगेगा कि मैं कुछ तो कर दूं, ये कम से कम ये यही करना शुरू करें, राइट. तो वैसे जैसे मैम, जैसे आप गोल्स के बारे में बता रहे थे, ठीक है, तो कभी कभार हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल या फिर एक बहुत ऐसे गोल होता है, पर उसको जब एग्जीक्यूट करना होता है इन रियलिटी, तब हम कभी कभार वी dwindle, राइट.
तो for example, जैसे because this is a sharing session and I really look up to you, you're actually my inspiration. So I would, for example, my bigger goal in life is that, you know, wherever I end up, so we all want to dream something. For example, for me, development sector was the dream. But circumstances, whether I'm able to make it or not, is a different thing. But wherever I go, if my dream is to, in the 10 years down the line, excel in what I do, be a known person in my field, to be able to mentor young people like me, and then finally, with whatever profit that I make, do something for the marginalized and the vulnerable, not because I want goodwill and not for fame, but so that I can set an example the way, say, Ratan Tata did. He did not directly get into the development sector, but whatever he did now, he's doing the most for the development sector possible, right? So we have such wishes, such desires, such dreams, but in actuality, what do? We make a CV, we apply to a job, we think what to do, like we get into the operational daily circle of life and the mundane wheel of life. So how do you suggest, like, how do we make our dreams turn into reality? What do we do for that? So the first thing that you said, ki you have the want and desire. Why do you think it is a want and desire? It is your vision. Treat that as your vision. Write that down, that you want to be something like that. Describe yourself, right? First तो vision लिखो कि ये सब करना है मुझे. Like say, I have written down my vision statement in similar lines कि to impact 1 billion lives in 139 countries with 1 lakh super performing global players by creating multi-billion-dollar enterprise. You've quantified it also. Wow. So this, अब आप बोलोगे कि क्या पागल है क्या, राइट? सो बट यू शुड ना, आप खुद को पागल समझो, इतना ही बड़ा विजन स्टेटमेंट होना चाहिए. So write down that whatever you desire. Now the second thing is किसी और के लिए करना. जैसे मैंने बोला ना कि for people, why I, कौन सा लोग जिसको मैं इम्पैक्ट करना चाहती हूँ. लाइक से आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने एग्जांपल दिया अभी 500 लेडीज के साथ मैंने जो काम किया है. आई ऑलवेज थॉट देम एज माय इक्वल. कलेक्टर को जब मैंने बताया कि सम डे आई वांट टू रिपोर्ट टू दिस लेडीज, मैंने एक कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था वहां पे, एंड दे वर द बोर्ड मेंबर्स. सम डे आई वांट टू रिपोर्ट टू दिस लेडीज, तो मैं सीईओ होंगी, देन एज ए सीईओ आई हैव टू रिपोर्ट टू द बोर्ड. और बोर्ड मुझे हायर करने के लिए दे नीड टू अर्न 20 times whatever salary I will be getting. Yeah. So that is what my dream is. वो कलेक्टर को मैंने बताया. So what dream do you have? उस टाइप का एक लिखो. They are not the people who are your beneficiaries. Those are people equal stakeholder to you. Still, why do you want to work for them? वो आप सोचो. The next step is that, right? Yeah, because financial domain, maybe they are marginalized and vulnerable. I'm giving you example, but maybe socially, psychologically, emotionally, they are much bigger and better than you. Similarly, some might be financially more advanced than you, but in these domains, they would be nothing. For example, these people who indulge in politics and corporates, and your dream to do something for them is because you see the goodness in them. Somewhere you see, even though people justify it with karma theory, but somewhere you see the injustice that, you know, they could, if they were born in my place, then maybe they would have done much better than me. And why is it that God is, I maybe don't deserve everything that I have. Maybe she deserves it more than me, and it is my duty to empower her. Right? You have those true feelings in your heart, right? Like if a tear comes down your, because ma'am, the fact that you're working in this sector, the fact that you, for all these years, your wish is only livelihoods and nothing else, is because you cannot tolerate, and the plight of others is affecting you. You think of it as injustice. है ना मैम? तभी तो आप अपना हर दिन मेहनत कर रहे हो कि मैं इक्विटी लाऊं, क्योंकि आपको दिल है, आपका मन है वो. और जो हमारा दिल है, उस चीज के लिए प्लेटफॉर्म ऐसे हर किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, और इसको हम सिर्फ लक पे नहीं एट्रीब्यूट करते. लोग मेहनत से प्लेटफॉर्म ढूंढ के निकालते हैं जिसको सच्ची में करना है. बट मैं आपको बस एक
वो थोड़ा पेसिमिस्टिक नेगेटिव सिनेरियो बोल रही हूँ कि अगर किसी को नहीं मिलता वो प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल, और फिर भी वो अपने विजन को सच करना चाहता है, तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास खुद पैसा नहीं है तो आप किसी को क्या पैसा दोगे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो फिर आप उस चीज को कैसे एक रियलिटी में उतारोगे? थोड़ा सा मुझे, जैसे आप अगर यहाँ तक पहुंचे हो, आप उड़ीसा में थे कहीं पे, अब आप दिल्ली में बैठ के साधन के आप इतने बड़े इंसान बने, तो कहीं ना कहीं आपने अपने लिए एक ट्रैजेक्टरी पेव की होगी, एक पाथ पेव किया होगा, तो कैसे आपने लड़के कैसे किया? ओके, मैं आपको बताती हूँ। 500 साल पहले जाते हैं, 500 साल बैक ताजमहल जब बना था, किसी किसी को बुलाया गया था ना, एक आर्किटेक्ट था जो ताजमहल बनाया था, मतलब मैप दिखाया था। और पहले ही दिन शाहजहां क्या किए होंगे, वो फाउंडेशन स्टोन डाला होगा। क्या ताजमहल उस दिन बन गया था? आप वो फाउंडेशन स्टोन को ताजमहल बोल सकते थे? तो राइट, ताजमहल बनने में काफी टाइम लगा। इन बिटवीन जो प्रोसेस था, उसमें कहीं पे भी हम उसको ताजमहल नहीं बोल सकते थे। हम बोल सकते हैं कि हाँ ताजमहल बन रहा है, बट दैट वाज नॉट ताजमहल। तो आप ना, अभी आपके कंट्रोल में क्या है, जो छोटा सा चीज है, वट एवर यू कैन डू, दैट इज योर एक्शन पॉइंट, यू कैनॉट डू बियॉन्ड दैट। वो एक दिन बन जाएगा आपका ताजमहल, वो आपके देखते देखते बन जाएगा। वो छोटा सा स्टेप अगर आपने नहीं लिया, तो वो ताजमहल कभी नहीं बनेगा। नाउ हाउ दैट विल हैपन is none of our business. You have to set an intention, work towards it. उतना ही, That is such a deep thought. It's like Gita's thought, no? कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। हाँ, तो वो तो बड़ी बात हो गई, बट दैट इज हाउ आई हैव, आपने मेरा एग्जांपल दिया ना, हाउ आई हैव रीच्ड हियर। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये हो जाएगा एंड रिजल्ट। ऑल्दो आई हैव थॉट अबाउट, काम तो इसीलिए करने गए थे ना, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड देने गए। हमने वहां जितना हमको फेम मिल गया और पब्लिसिटी मिल गई, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। हमने, हाँ, वो सोचते भी कैसे, नरेंद्र मोदी से अवार्ड मिलता कोई सोच सकता है? मिला आपको? वाओ, मैंने वही तो बताया, अपने लेडीज को वही मिला, उनको उन्होंने, आप वाओ, अच्छा। हाँ। सो नरेंद्र मोदी तभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनके यहाँ फार्मर कन्वेंशन हुआ था। सो दीज लेडीज आल्सो पार्टिसिपेटेड एंड दे वन अवार्ड, उनको ही चूज किया नरेंद्र मोदी। नाउ यू कैनॉट प्लान इट, राइट? यू कैनॉट प्लान। सो आप प्लान बहुत कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, आप सिर्फ कर सकते कुछ। अब जब देखो, पहले ना, पहले तो नेगेटिव माइंडसेट है, राइट? नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव होते हो तो आपको सोचता है कि करना क्या क्या सब है, अदरवाइज आप कंप्लेनिंग क्रीविंग करते रहोगे, राइट? तो सबसे पहला स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, वहां पे जो कर सकते हो करो दिल से, राइट? एंड देन अपॉर्चुनिटीज विल कम, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इट विल कम ओनली व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, दिल से, राइट? तो दैट इज द ट्रिक, दैट इज द ट्रिक। हर किसी का भी बायोग्राफी आप पढ़ के देखिए, जो भी सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े लोग हैं, सबका वो पहले ही दिन से एक तो गोल था, एक ड्रीम था उनके दिमाग में कि ये करना है। जैसे आपने बोला कि मुझे इस तरह का एक ड्रीम है, राइट दैट डाउन सो दैट यू डोंट फॉरगेट। आपका माइंड क्या करेगा, आपको भुला देगा। हाँ मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे ट्राइबल्स एक सोशली ऑप्रेस्ड है, मतलब वो सोशली मार्जिनलाइज्ड है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली। खैर, अच्छा, इस बात पे मैं अभी आती हूँ, मैं अभी दूसरे थॉट पे आती हूँ जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि गोल को लिख लो। क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कभी ऐसे इंटेंशन वाले लोग जो इस फील्ड के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एज तक पूरा अपना फाइट मारेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टर्न 30 अभी, राइट? तो बट आफ्टर सम पॉइंट अगर उनको लगेगा कि अब मुझे आई हैव टू रन अ फैमिली और आई हैव टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, तो वो सोचेंगे कि अभी से ये नहीं हो रहा, तो ओके फाइन, लेट मी टेक वन ऑफ दोस कन्वेंशनल कॉर्पोरेट जॉब्स, एंड बिकॉज देन इट बिकम्स स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल फॉर देम, एंड they detach their life goal with their professional goal, and they in the name of practicality, right?
So how is it that you don't give up and you, for example, Narendra Modi, like you mentioned him, he did not become PM overnight. He was a volunteer for the party for so many years. I must have made so many sacrifices, financially, social recognition, parents' wishes not being fulfilled, no, whatever, you know what I mean. So how is it that you know, realize and stick to your dream and keep working towards it, no matter how much time it takes? And is it actually feasible for you, for everyone? Yes, yes. So here is the catch. इस दुनिया में सबको हेल्प चाहिए पल्लवी. Even that tormenting boss जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, those people, the inhuman kind of corporate people जो बात कर रहे हैं ना, don't you think they need help? उनको भी help चाहिए भयंकर. They need therapists for sure, if nothing else. So they need love. Love, of course. I was They being were deprived of love since their childhood और पूरे life शायद. That is why they are behaving in this manner. अगर जिस दिन आप सोच लोगे ना, then you will not be as critical about them. First thing is that. The second thing is, आपको लाइफ एक पर्टिकुलर पोजीशन में डालती है. आप वहां क्या कर सकते हो कर लो. इट कैनॉट बी आइडियल लाइक से अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे आपने सोचा ना कि रतन टाटा भी पहले शुरू के दिन से ही डेवलपमेंट सेक्टर में नहीं थे, या फिर उनका इंटेंशन वैसे नहीं था और अल्टीमेटली डिड दैट. तो हमारा भी इंटेंशन कुछ है जिसको अब हम पहले ही दिन से नहीं अचीव कर सकते. वी कैनॉट टेक आवरसेल्व्स, पुट आवरसेल्व्स इन दैट वो आइडियल सिचुएशन. बट वेरेवर यू आर, वो लाइफ में जो भी कंपल्सन्स है, जो भी है, ये है वो है, wherever you are, start making a difference because you are different. आप कभी ये मत बोलो कि you are born unique to serve something which you cannot design all by yourself. It has been designed for you. Make justice to that role that you have been given. कहीं पे भी. Yes, ma'am. True. We should not undermine, and like you rightly said, that development is not just economic development; it's social, it's emotional, it's all kinds of development. And if you're not developing, say, a marginalized community, maybe you're developing an individual who's deprived of love and who's deprived of friendship. So I completely understand your point that we should look at development with a wider perspective, and that way we can make a difference wherever we are in life, right? But of course, like some of us, like you and I, when we see those didis and we see those villages and we see those people, then the kind of love that we feel is much more deep, is different. I won't say more deep, but it's different from the love we feel towards say peer. And I'm not saying it's more or less, but it's a different kind of love, and we are really attracted there. क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई मतलब चावल खा रहा है सिर्फ अचार के साथ, और तो हमें लगता है कि यार ये तो ठीक नहीं है, मतलब समझो ना मैम आप थोड़ा. तो उसमें हम चाहते हैं कुछ करना, बट कोई बात नहीं है ना, हो जाएगा. तो नहीं, उसमें भी मैं आपको 3 स्टोरी अपने सुनाती हूँ कि मेरे पापा ना एग्रीकल्चर डायरेक्टर उड़ीसा गवर्नमेंट में थे. सो ही वाज, सभी कोई जब बैठ के बहुत मीटिंग करते तो ही वाज इन फील्ड, बहुत टाइम रहते थे. मुझे सभी को बोले क्या यार, वो कीड़े कीचड़ में होने के लिए चले जाते हैं तुम्हारे पापा, ऐसे ऐसे भी कैसे हैं. तो आई न्यू माय फादर कि कैसे हैं, कैसे थे वो. उनका कहना है कि लोग ना ज्ञान जब ले लेते हैं, लाइक से एग्रीकल्चर जब पढ़ाई करते हो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके, किसकी पढ़ाई करते हो आप? क्या अपने गांव के एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हो? नहीं. तो आप यूएस, जापान, ये सब की पढ़ाई करते हो. फायदा कुछ क्या है. हाँ. और उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में एग्रीकल्चर की काफी अच्छी हो रही है, ठीक, बट पंजाब इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम उड़ीसा. क्या आप उड़ीसा की एग्रीकल्चर करते हो? नहीं, आप पढ़ते कुछ भी नहीं हो जो पढ़ाई करते हो. हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थे, पुरखों से हमको जो मिला हुआ था, जब हम यूनिवर्सिटी में चले गए ना, तो वो खेती कौन करता? तो वो जो ट्रेडिशनल विजडम बह के आ रहा था ना हम जनरेशन से, वो कहीं पे स्टॉप हो गया 2-3 जनरेशन के लिए. अब तो हम खेत भी नहीं पहचानते अपने.
राइट। सो ये पहली बात थी। दूसरी बात उन्होंने बताया कि लोग हमेशा ही हीरो बनना चाहते हैं। तो गोल स्ट्राइकर, गोल जो स्कोर करता है ना, उसको कहीं इसके अप्रोप्रिएट टाइम पे पास मिला हुआ रहता है, तभी वो गोल स्कोर कर पाता है, जो स्कोरर होता है। जिसने हाँ, जिसने पास किया वो गोल टाइम पे, ठीक सही टाइम पे, उसका उसका, कंट्रीब्यूशन है गोल हाँ, में। उसको उसको कोई नहीं याद रखता। स्कोर जो करता है उसको याद रखते हैं। सो पीपल डोंट वांट टू बी दैट पर्सन हु, जो सही टाइम पे गोल पास करे। सो यू शुड एम टू बी दैट पर्सन, क्योंकि आपके पास के बिना वो गोल कभी स्कोर होगा नहीं, एंड योर टीम कैनॉट विन। सो इफ यू वांट योर टीम टू विन, एंड वट एवर योर टीम इज, कितना बड़ा है आपकी टीम, यू हैव टू डू योर बिट। इसमें मैं एक बहुत स्टूपिड सी एनालॉजी ड्रॉ करूंगी। जैसे शादी में अब जाते हो, कुछ लोग होते हैं जिनका ध्यान होता है कि मैं फोटो में आ जाऊं, सुंदर फोटो, उनको सिर्फ फोटो में आना है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कोई नहीं, मुझे फोटो में आऊं, एक फोटो में आ गया बहुत है, मुझे काम करना है, मुझे सबको खाना, मुझे सारा फंक्शन अच्छे से हो जाए, मुझे उसमें ध्यान है। तो जो सच्ची में काम करना चाहता है उसको इतना सोशल रिकग्निशन का फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे टू बी ऑनेस्ट। वो एक कॉर्पोरेट में है, एक रिपोर्टिंग का एक मतलब एक अलग सा काम कर रहा है जिसमें उसको पैशन नहीं है, इसलिए वो रिकग्निशन के पीछे भाग रहा है। जिस दिन वो एक पैशन वाले काम में होगा, जिस दिन उसने किसी लड़की की हेल्प कर दी, उस दिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका बॉस के बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है ना मैम। यस। एंड द थर्ड थिंग इज, हम्म। थर्ड थिंग जो उन्होंने बताया, वो ये था कि उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने मुझे तो वैसे ही ट्रेन किया कि आप वो काम करो जिसकी जरूरत है, एंड चाहे ऐसे हो वैसे हो। वो काफी गैप है लोगों को, कुछ मतलब हरि की बात राम नहीं समझता, राम की बात गोपाल नहीं समझ रहा, ऐसे है सिचुएशन अभी। तो आप उस रोल को ले लो, जब सभी कोई हरि राम गोपाल जब एक टेबल पे आ जाएंगे ना, आपको कोई नहीं पूछेगा। बट फैसिलिटेट कौन किया था तीनों को एक टेबल पे लाने के लिए? मैंने किया था, राइट। मेरा रोल अभी वो है। तो नहीं करे तो नहीं करे, जब जब लेकिन सेटिस्फेक्शन तो मुझे है ना। मेरा तो ड्रीम ही वही है कि लोगों को एक टेबल पे ले आना, ताकि दे कैन टेक ए डिसीजन, राइट। ये था। और जो आप बता रहे हो कि ट्राइबल वो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, मैं जब बांधवगढ़ में गई थी, तो मुझे लोग, मेरे जो टीम वहां पे पहले से थे, वो मुझे दिखाने ले गए मिर्ची की खेती। सो मैं गई वहां पे, देखी तो वो पूरा का इतना, मतलब बहुत बड़ा प्लॉट नहीं है, छोटा सा प्लॉट है, एक कमरे जैसा प्लॉट है। और मैंने मैंने पूछा, अब भरा हुआ है पूरा, पता नहीं वीड से। मैंने पूछा कि इसमें मिर्ची कहाँ है? तो 4 मिर्ची के पौधे बड़ी मुश्किल से थे वो पूरे प्लॉट में। बोले कि है तो ये रहा, वो रहा, वो रहा। मैं बोली कि ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी इसको मिर्ची की खेती बोल सकते हैं। बाकी सारे को आप साफ करो, भले ही आप इसमें 10 पौधे लगा सकते हो, लेकिन 10 पौधे, वो मिर्ची मतलब वैसे ही होता है कि वहां पे सिर्फ मिर्ची हो, बाकी सारा ना। तो वो लेडी कुछ 50-60 साल की थी, पूरे बाल सफेद। वो बोले ये बथुआ है, ये जब सर दर्द होता है खाते हैं। दूसरा कुछ बताई ऐसे ना। वहां पे वो इतने छोटे से प्लॉट में जो 10 पौधे थे, वो सारे का बता दी, इसमें से कौन सा निकालूं, कौन सा उखाड़ दूं। ये सारे काम में आएंगे, क्योंकि जब इमरजेंसी हमारे यहाँ होता है तो यही काम आते हैं, डॉक्टर नहीं है यहाँ। तो उस दिन मुझे समझ आ गया कि माई लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर लाइफ, इनकी रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव। और वो खुश थे। वो पहले वो चावल खाएं या फिर कुछ भी खाएं, दे आर खुश। हैप्पी दैट, दे आर हैप्पी। हम ना अपने स्टैंडर्ड से उनको नापते हैं, तब उनको, हमको लगता है कि वो काफी डिप्राइव्ड है। ऑफ कोर्स दे आर डिप्राइव्ड, क्योंकि अभी एजुकेटेड वो उनको हो जाना चाहिए, वो नहीं है। उनको हेल्थ केयर मिलना चाहिए, वो नहीं है। उनको लाए ना लाए वो एक पॉलिसी का मैटर है। पर जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जैसे छोटे बच्चे जो है वो जलावन इकट्ठा कर रहे हैं, वो घर पे खाना बना रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं, जबकि छोटे बच्चे का तो टाइम होता है पर्सनालिटी डेवलप करने का, खेलने का, कूदने का, बचपन का, पढ़ाई करने का। तो वो जब मैं जैसी चीजें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हमारा वाला पढ़ाई ना करे,
मैं नहीं बोल रही मेन स्ट्रीम स्कूल्स में आ जाए, बट उनको मुझे वो सब देख के ऐसा फील होता है कि जरूर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिवली वो हमसे हमसे मतलब डिप्राइव्ड है कुछ चीजों में, मतलब आई कुड बी रॉन्ग। उसको उसको भी करने के लिए कुछ लोग हैं, जो अभी एमपी में एक जगह स्कूल बना है, वही ट्राइबल बच्चे ही आगे उसके डोर वोर बनाए और इको फ्रेंडली स्कूल बना है, वो मिट्टी विट्टी डाल के ना पुताई उताई करके वैसे करके। तो ये सोचने वाले भी, और वो सब किसने किया, वहां पे एक लेडी है, आप मेरे फेसबुक में अगर आ जाओगे तो आपको दिखेगा, ये सारे लोग जो करते रहते हैं वो सारे। तो ये सब होता है ना। हम अभी मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसपे हम काम कर सकते हैं, बट अपना पर्सपेक्टिव लेके व्हाई आई डू, क्योंकि मुझे अपने चारों तरफ लोगों को खुश दिखना था। और चूंकि मुझे नेचर में रहना है तो मैं ऑब्वियसली वही ट्राइबल एरिया में चली जाऊंगी। कभी भी मुझे मिले चांस, मैं पूरी जिंदगी तो ऐसे ही लोगों के साथ रही, ट्राइबल जंगल ये वो ऐसे। तो पहाड़ को पूजा करते हैं और हम लोग कुछ और मानते हैं, मतलब उनका रिलीजन अलग, थॉट्स भी अलग। तो मैं ये नहीं कहती कि हम उनको बोले कि तुम हमारे जैसे सोचो, हमारे जैसे जियो, उनके वे में रहो, अपने जंगल के साथ रहो, अपने पहाड़ के साथ रहो, पर उनको प्रॉब्लम ना आए बस। जैसे नक्सल सारे टाइम पुलिस, मतलब दीज आर वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स उनको, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? लाइक हाँ, तो झारखंड में मैं थी, झारखंड में मेरे हर एक मीटिंग में नक्सल आते थे। हर एक, मतलब अगर 40 लोग मीटिंग में हैं तो उसमें से 20-25 लोग नक्सली फैमिली से थे ही। सो देन किसी ने मुझे कोई नुकसान, अगर मारना उनको होता, उस एरिया में बहुत लोग मारे जाते हैं, मारना अगर होता तो उस एरिया में ऑटो वोटो मिलते नहीं, मैं पैदल चलती थी 4-5 किलोमीटर जंगल में, तो मुझे मार देते ना। तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं वहां पे अकेली थी, पूरा प्रोजेक्ट को देखने के लिए मेरे पास दूसरा कोई बंदा भी, ऑफिस असिस्टेंट तक नहीं था। सो इट वाज लाइक दैट, फिर भी आई वाज सेफ, और मुझे कभी लगा नहीं। अब बाघ मेरे बांधवगढ़ में एमपी में बाघ मेरे घर के बगल से जाता था, मैं मरी तो नहीं। सो देन यू नो समथिंग हैपेंस टू यू व्हेन यू आर वेरी प्योर एट हार्ट, राइट। और उसमें जो पर्सनली हमको काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम क्लियर ही नहीं होते। और जो विजन आप लिख लोगे, आज रात को आप एक बड़ा सा विजन स्टेटमेंट लिखो, यू विल फील सो मच ऑफ काम। फिर आपको लगेगा कि बाकी सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर रहे हो, दैट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस, क्योंकि आपका विजन बड़ा हो गया। नाउ यू आर वाइब्रेटिंग एट ए मच ग्रेटर रेट, जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन होता है ना, जो हम, that's how what attract also what we हाँ, anyway. हाँ, so you will be vibrating as a lot of calm will come over you। और वो जैसे ही हो जाएगा, then you will not bother about it, कुछ भी हो जाए। और दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते, दुनिया में लोग किसी और बंदे की सोच नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे साथ आके ना वो बंदा जरूर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पक्की बात। सिर्फ आप आज एक विजन स्टेटमेंट लिख के देखो, राइट। हाँ, आगे का क्वेश्चन। मैम आप तो आपके साथ तो कंटिन्यूअसली बात कर सकते हो, आप अपनी पीपीटी, लेकिन मैं बहुत आपसे कंटिन्यूअसली पता नहीं कितने भी घंटे बात कर सकती हूँ, लेकिन आपका जो पीपीटी है वो मैंने रोक दिया बीच में और 8:50 हो गया। तो आप डिसाइड कर लो आपको कैसे करना है आप। सो ये मतलब कुछ और लोगों को भी आप बुलाने वाले थे ना। हाँ सो जी। नेक्स्ट डिस्कशन कॉल में आप हाँ। ना पूरा लिखो, मतलब ये जो हम कर रहे हैं, लाइक से आई वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी। ठीक है, आप आ जाओ मेरे ग्रुप में ही, और बाकी सारे भी लोग आ जाएं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, बहुत बड़ा पैसा है नहीं मेरा, 5999 ही है। सो इफ यू कम, राइट, ऑल ऑफ यू, एंड देन फॉर्म ए ग्रुप, जो आगे, जो मैं बोलती हूँ ना, सुपर परफॉर्मिंग ग्लोबल प्लेयर्स। सो यू विल बी दैट super performing global players, educated, and then they have a global vision,
ऐसे करके, then we what I am teaching to you, अब आप भी टीच करोगे. सो इट विल बी ए गुरुकुल परंपरा, रिवाइवल ऑफ गुरुकुल जो हम कर रहे हैं ना, इट इज लाइक दैट ओनली. आई एम पार्ट ऑफ दैट. अब मेरे 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 मेंटर हैं, मेरे मेंटर के मेंटर हैं, मेंटर के मेंटर भी है जो रॉबर्ट कियोसाकी के मेंटर. सो इट इज लाइक दैट. सो उस ग्रुप में आप आ रहे हैं, राइट? तो आज आ जाओगे तो देन इट विल बी ए ग्रुप, लाइक से क्या बोलते हैं उसको, बढ़ता ही चला जाएगा. तो देन वी कैन रीच आउट एंड मेक दैट ड्रीम कम ट्रू. क्योंकि ये जो सोच है, दिस सोच कैनॉट बी जस्ट एट वन पॉइंट. ऑफ कोर्स आप आपकी पर्सनल काम पीस ये सब हो गया, बट वी ऑल्सो नीड टू expand, right? And then everybody can teach another person something. Yes. So let's. So whenever you're organizing your next talk, I will make sure that I at least market it well so that we have a good strength. And तो सैटरडे को यही टाइम पे मेरा डिस्कशन कॉल होता है. आजकल मैं इसको वेबिनार नहीं बोलती, बट वी कैन डू वन वर्कशॉप एज वेल, अगर उनको चाहिए तो, किसी को चाहिए तो. बट डिस्कशन कॉल कैन ऑल्सो बी, ये जो डिस्कशन उसमें भी करेंगे. बट देन आई विल हैव ए पीपीटी और मैं ही बोलूंगी. मतलब एक क्वेश्चन आपका होगा एंड देन आई विल गिव द, क्या मतलब जो सोल्यूशन मेरे पास है वो मैं आपको दूंगी. अगर वो of course, you are only this is your PPT. You'll give it. Obviously. है, बट नो द प्रॉब्लम्स विल बी वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. किसी का ये है, किसी और का दूसरा है, किसी तीसरे का दूसरा है. सो आई प्रेफर इट टू बी ए डिस्कशन कॉल. एक ने बोल दिया, उसका थ्रेड पकड़ के दूसरे ने कुछ पूछा, मैं भी एकदम एक्सट्रीमली पूरा पूरा ही डिफरेंट कुछ पूछा. सो ए डिस्कशन कॉल हेल्प्स कि लोगों को बहुत सारा पढ़ाई करना ना पड़े, खाली बातचीत करने से ही हो जाए. सो सैटरडे को होता है. बाकी whenever you want a class, then we can do after 9:30. So Wednesday छोड़ देना, Thursday को भी छोड़ देना, बाकी any other day we can do after 9:30. और आपने वो एप्लीकेशन लिखा लोगों को, क्रिस्टोदास के साथ बात की? मैंने आज एक इंटरव्यू के लिए गई, वहीं से आ रही थी. Okay, how was it? It was okay, ma'am, but it's not something that I would really be passionate to get into. It was a hospitality role. I like I told you that मेरा तो मन एक ही direction में अटका हुआ है. So I will. क्या था, कौन सा इंस्टीट्यूट था? This was it was a place called ESA Tourism. They basically bring business of. It's completely different from our line of work. But I had applied because I've applied in all sorts of places because I need to be employed. But I'm looking forward to speaking with sir. And I'll call him tomorrow. And other than that, there are some agricultural companies also which I've been applying to, like similar to Samunati. So let's see कैसे होता है, क्या होता है. But fight करते रहेंगे, होगा जब होना है ना. Yes. हाँ. Okay. Thank you for being here. और करते रहिए एंड ऑलवेज थिंक कि कहीं पे भी आपका हो जा रहा है ना, डोंट रेजिस्ट. बिकॉज देयर इज सम रीजन व्हाई यू आर पोस्ट इनटू दैट. आपको दिखा ही क्यों, आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखा ही क्यों? व्हाई यू हैव टू, यू चोज टू गो देयर, अपीयर किया ना. समथिंग मस्ट बी गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड, जो आप शायद अभी आपको रियलाइजेशन भी नहीं है, राइट? So there might be a reason जिसका बहुत बड़ा सा, might be some, you will get introduced to somebody who will influence you in a very bigger. मैं नहीं जानती, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, अभी तो आपने बताया. So these are the possibility that might happen, and by resisting, no, you will let go of that opportunity. तो फिर यूनिवर्स के पास ना क्या होता है, कई सारे choices होते हैं. It will give you thousands of choices. एक दिया, जैसे ही आपने ऑप्ट कर लिया ना, उसके सामने ऐसे करके खुल जाता है. Now you have to see those opportunities, ऐसे जैसे खुला, and then खुल गया ना, and then you take one path, then again
लॉट ऑफ चॉइसेस। तो आप कोई भी चॉइस लो, उसके आगे बहुत सारे चॉइसेस ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी ओपन कि आई एम नॉट रजिस्टिंग एनी अपॉर्चुनिटी, you are अच्छा, allowing, you are a magnet of opportunities. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन, ऐसे रिजिड नहीं होना चाहिए कि यू नो मेरे को मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी से तुम्हें क्या मिल जाएगी तुम खुद नहीं जानते, वैसे बोल रहे हो। yes 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 and वो काफी, अभी देखिए मैं अपने करियर के बारे में बताऊं तो इट वाज लाइक कि मैं एचआर से हूं नहीं, लेकिन मैं एचआर हेड बनी एक 10,000 एम्प्लॉय वाला कंपनी की। हाउ वाज दैट पॉसिबल, आप बताओ। एक मैं किसी एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में गई थी जिन्होंने मुझे एचआर वर्कशॉप में भेजा था। वो एचआर वर्कशॉप सीनियर मैनेजमेंट के लिए था। क्योंकि मैं उस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर थी तो इसीलिए आई वाज सेंट देयर। और उस एचआर वर्कशॉप में सब ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने एचआर पॉलिसी को प्रोजेक्ट कर रहे थे। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एचआर पॉलिसी था नहीं, सो आई हैड टू डिजाइन इट देन एंड देयर एंड प्रेजेंट। सभी ने देखा कि मैंने किसी, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, कोई भी एचआर पॉलिसी ड्राफ्ट किया ही नहीं था खुद से। आई डिजाइन इट देन एंड देयर। तो कौन अच्छा था? आई कुड डू दैट। नाउ आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि आप में सिर्फ एक सोच होनी चाहिए, यू कैन डू एनीथिंग। सो वो हो गया। उसके बाद मैं 1.5 साल बाद अप्लाई की जहां पे शंकर दत्ता सर थे। वहां पे तभी 10,000 एम्प्लॉइज थे। मेरा एप्लीकेशन वहां पे कोई देखता ही नहीं। बट बिकॉज दोज पीपल ना, सीनियर पीपल वेर पार्टिसिपेटिंग इन दैट एचआर वर्कशॉप, मैंने उनको बोला कि मैंने अप्लाई किया है, दे रिकमेंडेड एंड आई गॉट सिलेक्टेड। ये अपॉर्चुनिटी था। दिस कैनॉट बी पार्ट ऑफ योर प्लान। जो ऊपर से आता है, आपको अचानक से मिलता है ना, यू कैनॉट प्लान दैट। आपको कहाँ पे वरदान मिलेगा वो आप प्लान कैसे करोगे? यू कैन ओनली अट्रैक्ट बाय नॉट रजिस्टिंग। सो डोंट रजिस्ट। आपको पता नहीं कहाँ मिलेगा। शंकर दत्ता सर जैसे लोग मेरे बारे में बात करते हैं, मैं इस लायक कहाँ कब बन गई? इट वॉज, इट कुड नॉट बी पार्ट ऑफ माई प्लान। I got it, yeah. Yeah. And like even like for me to be blessed enough कि मैं शंकर दत्ता सर से एसोसिएट हुई, उनसे पढ़ी, उनसे जो भी करी, तो ये तो अब सही। और फिर हम भी मिल गए। क्या हमने कभी सोचा था, आपने कभी सोचा था एक लड़की आपको मैसेज करेगी योर माय लाइक इंस्पिरेशन, लेट्स स्पीक, और फिर आप हम बात करेंगे उड़ीसा के बाद कनेक्ट करेंगे? ऐसा तो हमने कभी ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा ना। ये कभी हम सोच नहीं सकते, हम कभी सोच भी नहीं सकते जो प्लान हमारे लिए है। सो वी हैव टू बी वेरी ओपन टू द प्लान दैट वाज डिजाइन फॉर अस। उसमें सब कुछ इतना बड़ा बड़ा है ना, बाकी सारी चीजें छोटी है, और ये कोई भी कर सकता है। इस तरह की सोच बड़ा करना किसी के भी बस की बात है, क्योंकि वो इंसान है। इंसान इसी वही है जिसके पास एक माइंड है, एक चॉइस है। ये पावर भगवान ने दिया है उसको। एनी इंसान, पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, कहीं हो कुछ भी, बट यू नो दे फॉरगेट इट। दैट इज व्हाई आई डू दिस, कि भाई एक बार रिमाइंड करा दूं कि तू क्या है एक्चुअली। इंसान है। एंड दैट इंसान, भगवान भी अवतार लेते हैं ना कभी कभी, सिर्फ हाँ, बताने को कि भाई तुम वो हो जो हाँ, जो मैं तुम्हारे लिए भी नहीं कर सकता। हाँ। मैं तो गुलाम हूं ना आपके, आपके चॉइस के पीछे मैं गुलाम हूँ। दैट इज व्हाट ही सेज। तो हम कितने लोग रियलाइज करते हैं उसको? कहाँ पे अटके पड़े हैं कि छोटी सी बात पे, छोटी सी बात जिसका कोई मतलब नहीं होता, राइट? You're right. The God is within us यार। अब हमें पॉजिटिव होके अपने गॉड से बात करना है या हमको नेगेटिव होके अपने डीमन से बात करना है, हमारी मर्जी है ना मैम। यस यस यस। एंड हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई सी, मैंने अपने प्लेयर्स का नाम भी वही रखा है, सुपर परफॉर्मिंग ग्लोबल प्लेयर। और ये अचानक से नहीं आया, ये अचानक से मेरे दिमाग में काफी पहले आया। अच्छा। एंड दिस विजन ऑल्सो, मुझे पता नहीं 139 कंट्रीज मैंने कैसे लिखा, इट फ्लोड टू मी, और मैंने इग्नोर नहीं किया। आई डिडंट रेजिस्ट एट ऑल। अच्छा। सो इट
जस्ट वो आता गया एंड मैं लिखते गई एंड यू आप ताज्जुब करोगे, इट इज सच ए थिंग कि अभी मैं अगर लिखने बैठती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं होता है, अगर पिछले पिछले मतलब कल क्या हुआ था मुझे पता नहीं होता है, एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग, मुझे वो मैसेज आता है, एंड देन समबडी टेल्स कि कल ये हुआ था, तो मैं बोलती ये मुझे पता कैसे चला, मैंने लिखा कैसे। सो ये मैजिक हो जाता है, ये मैजिक को अपने लाइफ में लाना है। Yes, ma'am. Let's meet soon on Saturday. ठीक है? Yes. ठीक है. Thank you so much Pallavi for the time, and भूख भी लगी होगी, जाके खाना खाओ and then yes. Okay, like I'll set up a meeting with you. We'll meet soon whenever you're free, and I'll call you. I'll tell you about my क्या क्या कहाँ बात चल रही है, so that you can guide me कि what I should take and everything. Yes. Okay. Bye. Bye.